Assalamu alaikum. This is Aksa Sumro, and I'm host of today's session. And I'm currently working as a PRO in Sindh Educational Organization. I request all the participants to join us for an insightful session on dedication and commitment to goal with our esteemed speaker, Anna Khan, as an SECA student and account officer at Centex Product Company. In this session, Anna Khan will dive into the importance of dedication and commitment in achieving your goals, drawing from her personal journey and professional insights. So let's welcome Ms. Anna Khan, and this session is over to you, ma'am. Assalamualaikum, first of all, I would like to thank an educational organization for having me over here to make me this much basically I'm here for to let you people know okay, how a person can do multitask and how you should be dedicated and committed to your goal. So today I'll not like share sort of that kind of presentation जो इस तरह के platforms पे होती हैं. I'll let you know some of my personal experience. I'll share some PPTs. But ये उस तरह का session नहीं होगा जैसे normally होता है. I'll basically give you a practical example of my home. So the topic I choose, dedication and commitment to your goals, is basically कि most of the students who think कि वो कुछ कर नहीं सकते, like some of the many of the students जो है वो काफी चीजें अपनी लाइफ में सोचते हैं कि they'll do this and this, but एक point ऐसा आता है they feel like कि ये अचीव नहीं हुआ, so now we can't do anything else. तो वो एक जो पॉइंट होता है वहां पे क्या डिसाइड करना होता है, वहां पे कैसे कुछ चीज को चूज करना होता है, वहां पे कौन सा पाथ आपको चूज करना होता है. दिस इज व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट टुडे. सो इफ आई शेयर पीपीटी वो फॉर formality. Okay, so is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So first of all, we all are here for something in life. ऐसी बात नहीं है कि कोई useless है या फिर कोई कुछ कर नहीं सकता. If you're here, so you're for something. Like पेरेंट्स जो है वो बहुत अर्ली स्टार्टिंग एज होती है, बहुत अर्ली स्टेज होता है जब हमें ये बता दिया जाता है कि नाउ वी नीड टू डिसाइड समथिंग. That's not the actual point when we need to decide something, like when students are in 9th, 10th या 11th or 12th. That's not the actual point. मतलब अगर आपने वहाँ पे कुछ सोचा है and you are unable to achieve the thing, so that's not the thing कि आपने ये achieve नहीं किया, तो now there's no aim. You can set your aim at that time too. It's never too late to decide something, that what you need to do and what you can do, या आप किस चीज के लिए हो, आप क्या चीज अचीव कर सकते हो. To achieve something, to get something or to reach something, it's never too late. You just need to be dedicated. First of all, you just need to set a goal. अगर आपसे कुछ अचीव नहीं हो रहा है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि now you can't do anything. This world is full of things जो कि आप कर सकते हैं. Like choosing art is not a bad thing. हमारी सोसाइटी में समझा जाता है कि being a doctor, being an engineer, यही सब कुछ होता है. Mostly when I was in inter, so I saw there were hundreds of students in medical field, almost hundreds of students in engineering field. But if I talk about arts या फिर commerce, there were so मतलब बहुत कम बच्चे हुआ करते. और उसका रीजन यही था कि हमारी सोसाइटी में समझ जाता है कि बीइंग अ डॉक्टर या बीइंग एन इंजीनियर इज एवरीथिंग. इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर इंजीनियर, आई फील लाइक इंजीनियर्स को भी उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है जितना ज्यादा हम डॉक्टर्स को दें. तो आई फील लाइक कि being a doctor is like you have achieved a lot of things, the respect, but I don't think so कि just being a doctor या being an engineer is everything. There are a lot of fields जो कि आप choose कर सकते हैं and you can be something, you can earn respect as well. We have heard कि जो है medical, I am talking about medical that at that much क्योंकि मैं खुद जो starting में I was a medical student and I used to think if I don't get the medical वाला thing तो I can't do anything. I'll share with you my personal experience क्योंकि वही सबसे ज्यादा sort of एक बिल्कुल practical example होगी. मैं आपसे कोई
इंटरनेट से उठा के कुछ ऐसे शेयर नहीं करूंगी कि ये आइंस्टाइन ने ऐसे किया या फिर इसने ऐसे किया. I'll share with you my personal experience. So basically when I was in ninth class, so I was just crazy for medical wala thing कि I want to be a doctor, I want to be a doctor, and I literally did a lot of hard work and I didn't get much good results in ninth matric, but फिर भी शायद मुझे वहां समझ जाना चाहिए था कि इट्स नॉट फॉर मी. बट इंटर फर्स्ट ईयर में आई डिड अ लॉट, उससे ज्यादा. और द गुड थिंग इज कि मैंने अपने जो पूरा कॉलेज था, नॉट द बोर्ड वाला थिंग, पूरा जो कॉलेज था उसमें आई स्कोर्ड 85%. तो कॉलेज में वही सबसे ज्यादा था, 85%. आई नो इट्स नॉट द हाईएस्ट वन, बट मेरे कॉलेज में वो सबसे हाईएस्ट था. तो वहां पे आई जस्ट थॉट कि आई एम मेड फॉर इट. नाउ लुक, इंटर के बाद मैं फर्स्ट ईयर के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया कि आई एम मेड फॉर इट, मतलब बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट. मैंने अपने दिन रात, यू नो द एंटीएस वाला थिंग, उसमें बच्चे जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे होते हैं. आई डिड अ लॉट, मतलब लाइक आई इवन न्यू कि बुक के कौन से पेज पे कौन सी लाइन में क्या लिखा है. मतलब स्टूडेंट हु नोस कि बायो की बुक में एक पेज पे ये लिखा है और ये लाइन है और ये पेज है, उसके लिए पास करना क्या मुश्किल होगा. बट इट्स यू, द इनर यू, जो कि उस चीज के लिए बना ही नहीं था. So when I attempt the NTS, I couldn't clear it on merit. And the most foolish thing I did, being crazy about medical, was कि मैंने अपना एक साल वेस्ट करके मैंने दोबारा से मेडिकल में ही अपना जो है वो एनरोल हुई. And I again gave NTS and I again couldn't clear it on merit. I was selected on the self thing. That was the point. I just thought कि I guess I'm not made for anything like this. बल्कि इवन आई थॉट कि आई कांट डू एनीथिंग इन माय लाइफ, लाइक आई एम सो यूजलेस. एंड जब मैं इतनी मेहनत करके कुछ अचीव नहीं कर सकी, तो मैं अब किसी और तरफ जाके तो मैं कुछ भी अचीव नहीं कर सकती. आई मेक मोर फूलिश मिस्टेक्स लाइक गोइंग फॉर डी फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी. आई इवन इवन अ टाइम लाइक टेस्ट जो होता था डी फार्मेसी के लिए भी डाउन में, मैंने वो भी दिया. बट जिस दिन मैं टेस्ट दी के आई जस्ट सिट एंड आई जस्ट रियलाइज कि मैं इतनी ज्यादा खुआरी कर रही हूँ फॉर फिजियोथेरेपी पे, फॉर फार्मेसी वाला थिंग, जिसमें मुझे आई गेस 4 से 5 साल पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद आई विल बी डूइंग अ हाउस जॉब. तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड डू समथिंग एल्स. मतलब अब वो पॉइंट था कि आई वाज सो कंफ्यूज, समथिंग एल्स व्हाट कैन आई डू. मतलब मेडिकल में तो मतलब इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में. मैंने 9 मैट्रिक से अपना फोकस मेडिकल पे रखा. फिर मैंने फर्स्ट ईयर इंटर में तो बिल्कुल साइंस की बुक्स बिल्कुल वो कर दिया. बीइंग अ सिंथ की स्टूडेंट, मैं फेडरल की बुक्स पढ़ रही हूँ, उनको इस तरीके से मैंने रट लिया है. अब मैं क्या करूंगी, लाइक व्हाट विल आई डू, एंड आई वांट टू अर्न एज सून एज पॉसिबल ना, क्योंकि आई कांट बी सो डिपेंडेंट ऑन माई पेरेंट्स. तो और फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट तो मैं अर्न भी नहीं कर सकती. तो आई स्टार्टेड अ जॉब बीइंग अ टीचर. फिर उसमें आई वाज जस्ट फीलिंग कि मैं बहुत यूजलेस हूँ. फिर आई कलेक्टेड सम मनी. मैंने जॉब करके एक बिल्कुल एक टीचर, आई वाज अ टीचर ऑफ 7th 8th and 9th क्लास, आई गेस नॉट 9th 6th 7th 8th, अ साइंस टीचर. एक साइंस टीचर है जिसके दिमाग में ये चल रहा है कि नाउ शी इज गोना गो फॉर एसीसीए, द अकाउंटिंग. बिल्कुल उससे अलग जो उसने अभी तक अपने 4 साल में पढ़ा है, या जो बचपन से उसका एक गोल रहा है. वो एक साइंस टीचर है और वो शी इज कलेक्टिंग द फंड्स, द मनी, शी इज अर्निंग मनी कि उसने वहां जाना है. एंड शी डोंट नो हाउ शी इज गोना डू इट. And I used to live in interior in Tando Adam. I was the girl from Tando Adam, and I was the first girl from my whole family, from my whole खानदान, जिसने एक ऐसा स्टेप लिया जो सब कुछ वहां पे छोड़कर, apart from family, I moved to Karachi and I just take admission in ACCA, तबानी School of Accountancy, and बगैर कुछ सोचे समझे, मतलब because it was just my goal. मैंने कुछ hurdles नहीं सोचा. I knew it gonna be so hard for me. I'm gonna so much hurdle. I'm gonna face so much hurdles. मैंने ऐसी कुछ चीजें बहुत सोची, बट मैंने इनको अपने रास्ते में ऑब्स्टिकल नहीं बनने दिया. I just moved from there and just came over here और मैंने एडमिशन ले लिया. बेसिकली मैंने सेट इन द वेरी फर्स्ट क्लास. द मोस्ट फनीस्ट थिंग इज जब टीचर ने क्लास में कहा द एसिड एंड लाइबिलिटी, सो आई वाज सो कंफ्यूज्ड व्हाट एसिड इज.
बेसिकली यहाँ पे डेबिट को DR कहा जाता है, तो मुझे जो DR पता था वो बस डॉक्टर ही पता था। तो डेट वाज सो मतलब न्यू फॉर मी। तो बहुत स्टार्टिंग में जो है एसेट लायबिलिटी एंड सच थिंग्स, तो वहाँ पे मॉक्स हुआ करते थे। जब मैंने अपना पहला मॉक दिया तो आई फेल्ड इट एंड आई थॉट कि आई कांट इवन डू दिस। मतलब कांट इवन डू दिस क्या, बल्कि मुझे वो सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा था क्योंकि वो मेरे लिए बिल्कुल अलग था। तो फिर जो है मैंने कहा जहां मैं इतनी मेहनत वहां करके आई हूँ, एंड आई मूव फ्रॉम देयर टू हियर। टंडवादम इज अ सिटी इन इंटीरियर सिंध। मैं वहां से यहाँ आई हूँ कराची, एक बिल्कुल स्ट्रेंज नहीं। आई यूज्ड टू केम हियर बट along with my family, I used to travel along with my family, but I just took a decision and alhamdulillah my parents supported me a lot. So I just came here and took admission and I just thought कि मैं ये भी नहीं कर पा रही हूँ, so what I'm gonna do? So I put my 100% effort in that. And मैंने जो वो I was a medical student, तो मेरे 17 एग्जाम्स थे ACCA के। तो द वेरी फर्स्ट एग्जाम वाज FA1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, बिल्कुल बेसिक था जो हम इंटर कॉमर्स में पढ़ते हैं आई गेस। तो जब मैंने वो अटेम्प्ट दिया, वो एग्जाम दिया, दैट वाज अ CBE एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता था वो हमारे उसमें ही तबानीज में ही। एंड आई स्कोर्ड 90% इन दैट द फाइनल एग्जाम जो कि ACC की तरफ से। आई गेस दैट मैं उस दिन भी मैं जो है वो मैं वहां चली गई थी वापस अपने घर टंडवादम, और मैंने जो है वहां तैयारी करी थी आफ्टर माई क्लासेस एंडेड। और मैं वहां से सुबह में आई थी और शाम में मेरा एग्जाम था एंड आई जस्ट अटेम्प्टेड द एग्जाम एंड आई गॉट 90%। तो दैट वाज द मोमेंट इन माई लाइफ जब मुझे पता चला कि आई एम मेड फॉर इट। द रियलाइजेशन मोमेंट, योर वर्थ। मतलब और आई टोल्ड यू कि मैंने नहीं सोचा था कि क्या हर्डल्स आएंगे या फिर क्या होगा। ACC के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी अलग से फीस होती है, एंड दिस सिली गर्ल डिडंट इवन न्यू कि वो एग्जाम फी भी होती है जो कि पाउंड्स में जाती है। उसके बावजूद आई जस्ट प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम एंड व्हेन आई गॉट टू नो कि दिस एन एग्जाम फी, तो मेरा एग्जाम भी डिले हुआ था बिकॉज मुझे जो है वो पैसे चाहिए थे एंड आई डिडंट न्यू अबाउट इट कि वो एग्जाम फी भी होती है, तो वो पेरेंट्स को मैंने बताना एंड और वो डेट होती है। And then I attempted the exam and got 90%. So that was the moment in my life when I realized कि I made for it. वो मोमेंट था जब मुझे खुद पे प्राउड फील हुआ। I just called my parents and let them know कि मैंने एग्जाम अटेम्प्ट किया and scored 90% and this is me. वो ACC की तरफ से एक हाई ACC नहीं सॉरी तबानिश की तरफ से एक हाई अचीवर्स का एक पोस्टर सॉर्ट ऑफ एक पोस्ट भी लगता है फेसबुक पर। आई शेयर इट वेरी प्राउडली बट दैट वाज नॉट द एंड। आई टोल्ड यू कि आपका कोई गोल होता है तो उसमें बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, बहुत सारे हर्डल्स। इवन दो देयर इज नो एंड फॉर योर हर्डल्स, इट्स यू इफ यू वांट टू अचीव समथिंग। और द मेन थिंग इज कि कहीं पे भी आपका गोल रुकता नहीं है। You achieve something, now you need to achieve more, you need to achieve more and more and more. As much as you will achieve, you will get to know कि what you are. आप बहुत ज्यादा worthwhile हो, you are not limitless. मतलब आप limited नहीं हो, sorry, you are not limited, you are limitless. And I am talking about everybody. Like then मैंने अपने 2-3 एग्जाम्स और दी, फिर जो है वो पाउंड्स की फीस बढ़ने लगी, so I just realized that I can't rely on my parents completely, I need to start a job. But then I was so scared से how I'm gonna manage my studies with the job. तो उसके बाद वाले एग्जाम में I scored 80%, 84%, 88%. Then I started a job at a firm, टैक्स की फॉर्म। और मैंने जो वो उस जॉब करते हुए मैंने अपना जॉब के साथ जो पहले एग्जाम दिया वो था 89%। और वो थोड़ा एडवांस एग्जाम था एज कम्पेयर टू वो 4 बेसिक एग्जाम्स के। तो 85% पे ACC की तरफ से एक सर्टिफिकेट होता है, एक स्टैंडर्ड स्कोर होता है। एंड आई स्कोर 89%। उस टाइम मुझे ये पता चला कि आई कैन डू मोर। मतलब पहले मैं जॉब के बगैर एक एग्जाम दे रही थी, अब मैंने जॉब के साथ एक एग्जाम दिया, तो आई कैन डू मोर। मैंने वहां रहते हुए अपने एग्जाम देना स्विच टू इंडस्ट्री Scientix Predix Private Limited. I am here now, मतलब it's माशाल्लाह been an A and I'm here working as an accounts officer. Um,
फिर उसके बाद हमारा स्किल्स मॉड्यूल स्टार्ट हो जाता है, जो कि आपको 3 महीने में एक अटेम्प्ट देना होता है, और दैट्स टू टफ फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी, लाइक समबडी डूइंग अ जॉब एंड ऑल। बट मुझे पता था आई कैन डू इट एंड आई डिड इट। नाउ आई एम डूइंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने काफ़ी एग्ज़ाम्स में जो है वो मैं सर्टिफिकेट्स ले रही हूँ, और आज जो है वो मेरी एसीसीए की तरह एसीसीए की जो हमारे तबानीज़ में हाई अचीवर सेरेमनी होती है, उसी में आई गॉट 2 सर्टिफिकेट्स फॉर माय 2 एग्ज़ाम्स, वन फ्रॉम दिसंबर अटेम्प्ट, वन फ्रॉम मार्च अटेम्प्ट। दोनों में ही मेरी परफॉर्मेंस वाज़ एक्सेप्शनल एंड आई वाज़ अ हाई अचीवर। तो इसको बताने का ये मकसद नहीं है कि व्हाट आई डिड, इसको बताने का ये मकसद ये है कि आपके सामने एक ऐसी बंदी बैठी है हु वाज़ अ मेडिकल स्टूडेंट और नॉट एन एवरेज मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि मैंने अपने पूरे कॉलेज में टॉप किया था एंड आई वाज़ हैविंग 94 मार्क्स एंड 96 मार्क्स इन बायो वाले जो सब्जेक्ट थे, बायो, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो आपके सामने वो स्टूडेंट बैठी है जिसने मेडिकल से अकाउंट्स में स्विच किया एंड शी डिड इट। तो इफ आई टॉक अबाउट दीज फॉर्मल स्लाइड्स, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी में प्रिपेयर करी थी, माय मेन पर्पस वाज़ टू लेट यू पीपल नो कि इट्स नेवर अ लिमिटेड थिंग जो कि आप कर सकते हैं। देयर आर मोर व्हाट सो देयर आर मोर थिंग दैट यू कैन अचीव। तो सबसे पहले अगर मैं एक लाइक ये तो थी मेरी स्टोरी। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द गोल सेटिंग और जो है लाइक being doing efforts for it. So the thing I wrote over here, it's not a quote I got from internet, if you Google, if you chat GPT, it's not from anywhere. It's what I write. I just opened the PowerPoint and I was just flipping the PPT and I decided कि मैं खुद से लिखूँ कुछ, क्योंकि मैं यहाँ अपनी स्टोरी सुना रही हूँ तो मैं लिखूंगी खुद से। To reach somewhere in life or to be somebody, we all need a goal or an aim. So हम ऐसे बैठे बैठे डिसाइड नहीं कर सकते कि where we need to reach या फिर what we need to do, या हम खुद ही कहीं से पहुँचेंगे। हमें पहले डिसाइड करना होता है कि हमें करना क्या है, हमें बनना क्या है। मतलब व्हेन जब तक मेरा डिसीजन था कि आई नीड टू गो फॉर मेडिकल, आई वाज़ डूइंग हार्ड एफर्ट्स फॉर दैट। बट जब मैंने अपना एक माइंडसेट चेंज किया तो आई डिसाइडेड समथिंग। मैं ऐसे ही उठ के यहाँ नहीं आ गई, डिसाइडेड समथिंग पहले। या मैंने ऐसे ही कुछ अपना फील्ड स्विच नहीं कर दिया, मैंने पहले डिसाइड किया कि मैंने क्या करना है, या मैंने कैसे करना है। तो टू रीच समवेयर या फिर टू बी समथिंग, या फिर आपको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए आपको कुछ गोल तो सेट करना पड़ता है ना, कि आपने करना क्या है या आपने पहुंचना कहाँ है। अनटिल और अनलेस आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता, हाउ कैन यू जस्ट स्टार्ट अ जर्नी या स्टार्ट ट्रैवलिंग। इट्स लाइक यू आर सिटिंग इन अ ट्रेन एंड यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। इट्स जस्ट यू आर जस्ट वेस्टिंग योर फेयर, योर पैसा एंड योर मनी, जो भी है, एंड यू आर जस्ट गोइंग। इट्स नॉट द पॉइंट। यू शुड नो वे यू नीड टू रीच, वे यू गोइंग, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप ट्रेन में बैठोगे तो इट्स गुड, वरना यू विल एंड अप बीइंग नो वे। या तो आपको उतार दिया जाएगा या आपको खुद उतरना पड़ेगा। आपको अगर कहीं पहुंचना है टू रीच समवेयर वर्थ वाइल ना, नॉट समथिंग ऐसे। आई एम नॉट सेइंग कि नथिंग समथिंग इज नॉट वर्थ वाइल। बीइंग एन आर्टिस्ट इज वर्थ वाइल, बीइंग अ सिंगर, बीइंग एन एक्टर, बीइंग अ राइटर, बीइंग एन स्पीकर, इट्स एवरीथिंग इज वर्थवाइल। हमारी सोसाइटी में जो है बहुत सारी ऐसी जो लाइक वो हैं प्रोफेशंस हैं, या फिर किसी की एक्टिविटी है, या फिर किसी को इंटरेस्ट है, तो वो उसको समझते हैं लाइक इट्स नॉट वर्थवाइल। ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज वर्थवाइल। मतलब इफ समबडी इज राइटिंग अ बुक, इज राइटिंग अ नोवेल, तो हमें ऐसे लगता है वो एक बंद कमरे में बंद है एंड ही इज डूइंग नथिंग विद हिज लाइफ। वी डोंट नो कि वो सिर्फ एक बंद कमरे में ही पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, वो उसको एक किताब में लिख रहा है। एंड सो मेनी ऑफ द पीपल रीड बुक्स एंड सो मेनी ऑफ द पीपल आर जस्ट इनटू बुक्स। वो बुक्स को रीड करके बुक्स में बिल्कुल लाइक आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर जस्ट क्रेजी फॉर नॉवेल्स, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के just like being crazy in novel in a very positive way. We learn a lot about from books. तो मैं जो भी आर्टिस्ट की या राइटर की बात कर रही थी कि हमें ऐसे लग रहा था वो बस एक पेंटिंग कर रहे हैं, एक बंद कमरे में बैठे हुए, या बस एक राइटिंग कर रहे हैं। बेसिकली दे एक्सप्लोरिंग मोर, दे नो मोर अबाउट द वर्ल्ड, दे नो मोर अबाउट द सिनेरियो। तो आपका गोल जो मैंने बताया कि वो भी कुछ ऐसे ही नहीं होना चाहिए, दैट नीड्स टू बी स्मार्ट। और ये तो मैंने इसी थीम में भी पढ़ा है कि गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट गोल्स होने चाहिए, स्पेसिफिक। द थिंग आई टॉक अबाउट कि वो एक स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ जाना है। इट नीड्स टू बी मेजरेबल। मेजरेबल लाइक इट्स लाइक कि
बिल्कुल एक वो नहीं कर देना कि लाइक कुछ भी हो जाए, कुछ भी बोल देना। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको ये करना है तो व्हाट यू नीड टू डू, मतलब इफ यू नीड टू गो ओवर देयर तो आपने क्या करना है, लाइक यू नीड टू मेजर द थिंग्स, लाइक हाँ मैं अपनी बात करूं, मैंने डिसाइडेड कि आई नीड टू गो फॉर एसीसीए, तो मैं उठ के नहीं आ गई, मैंने उसको मेजर किया कि व्हाट आई नीडेड। हाँ मुझे ये नहीं पता था कि एग्जाम फी अलग होती है, ये मैंने भी तब नहीं पता किया था, मुझे भी नहीं पता था, बट फिर भी एटलीस्ट आई मेजर द थिंग्स कि मैंने जो है वो यहाँ तक आने का या फिर एडमिशन लेने का मैंने पहले अर्न किया, मैंने उसको फंड किया, देन आई केम ओवर। सो योर गोल शुड बी अटेनेबल। अब मैं नहीं कहूंगी कि कुछ अटेनेबल नहीं होता, इट शुड बी यू हु नीड टू मेक इट अटेनेबल। एज फॉर मी इट नीड्स टू बी यू। आपको होना चाहिए कि यू कैन डू इट एंड यू हैव टू डू इट। इट्स नॉट शुड बी लिमिटेड टू यू कैन डू इट। हम हमेशा सुनते हैं कि यू कैन डू इट, whenever I'm nervous I listen you can do it, where I need to listen you have to do it। अगर आपने कुछ डिसाइड किया and you want to reach somewhere so you have to do it, it's not like you just need to do it। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपका अपने आप को ये बताना होता है कि यू कैन डू इट, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि यू हैव टू डू इट, बिकॉज लाइक यू हैव नो अदर ऑप्शन, इवन दो यू हैव ऑप्शन, बट अगर उस ऑप्शन में भी आप जाते हो यू हैव टू डू। योर गोल शुड बी रियलिस्टिक। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचो, मैं कहूंगी आप सोचो एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं सोचती हूँ लाइक अभी जो है लाइक आई एम डूइंग ये एसीसीए एज वेल एज मेरे बीकॉम के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, उसके साथ आई एम डूइंग ए जॉब, और आज ये सेशन भी था, तो इफ आई वांटेड तो मैं ये सेशन कैंसिल कर सकती थी क्योंकि मेरा बीकॉम का एग्जाम भी था, but I decided that I have to do it. And it would sound so unrealistic for so many people. Hey, having an exam, having a session, and doing preparation for ACCA, because I'm having my audit exam, audit and assurance on 3rd of June, जो कि बेसिकली ACCA स्किल्स मॉड्यूल का सबसे ज्यादा टफ एग्जाम कहलाया जाता है। इसका पासिंग रेशियो बहुत कम होता है एंड वी ओनली गेट 2.5 मार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं होते, बहुत कम भी नहीं होते, मतलब आई डोंट फील लाइक कि बहुत कम है। इफ समबडी वांट्स तो वो कर सकता है, उसको करना पड़ता है, एंड ही शुड और he should and she should। So where I was, the goal should be realistic, but it not should be that much realistic कि एक बंदा एक काम करे तो वो कुछ एक काम ही कर सकता है। मैं ये भी नहीं कह रही कि a person have to be multitask, but if you want to so you can। उसके बाद my point, the last thing about smart goal is time bounded। Your goal should be time bounded। Like टाइम बाउंडेड, लाइक आप सोच के बैठे हो कि यू गोना डू दिस, तो आप सोच के बैठे हो, यू हैव टू सेट अ टाइम लिमिट, या फिर एक जो है एक सॉर्ट ऑफ एक स्लॉट होना चाहिए, या फिर एक लिमिट होनी चाहिए, या फिर एक अल्टीमेटम होना चाहिए कि आपने इस टाइम तक ये चीज कर लेनी है। लाइक हमारे पास एग्जाम में भी जब हम एग्जाम बुक करा देते हैं ना, तब हमें पता होता है कि ये एंड डेट है, तब हम एग्जाम दे रहे हैं, तो हम तभी ज्यादा सीरियस होते हैं। तो जब आपके पास एक लिमिट हो गई, या फिर आपके पास एक वो एक हॉराइजन होगा टाइम का, तभी आप उस चीज को ज्यादा अच्छे से अचीव करोगे। फॉर एग्जाम्पल यू गिविंग अ टेस्ट और आपके सामने एक क्लॉक चल रही है कि आपके पास इतना टाइम है, तो आप उस काम को उस टाइम में ही करने की कोशिश करोगे। इन केस आपके पास वो क्लॉक नहीं चल रही हो, तो यू विल नॉट बी डूइंग इन दैट टाइम ना। मतलब आप बेसिकली, मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताऊं, व्हेन वी आर गिविंग मॉक्स, तो वहाँ पे जो है वो टाइम नहीं चल रहा होता है, तो हम उसको कर रहे होते हैं 4 घंटे में भी कर रहे होते हैं, 5 घंटे में भी कर रहे होते हैं। बट वेन वी आर हैविंग अ क्लॉक ऑन फ्रंट, मतलब टाइम जब होता है सामने, तो हमें उसको एनी हाउ 3 आवर्स में कंप्लीट करना होता है, और वो हो जाते हैं क्योंकि वी नो कि वे टाइम बाउंडेड। सो इसके बाद माय नेक्स्ट स्लाइड इज द मोस्ट important thing about a goal, you have to do something, never rely on somebody, never rely कि somebody will let you know, if somebody will guide you, हाँ गाइडेंस चल सकती है, but somebody will let you know कि what you made for, या फिर आपने क्या करना है। no, it should be you can't rely on somebody to do something, या फिर to decide something, never rely on somebody to decide something for you, it should be only you to decide it what you need। ये लाइफ में भी एक बात है कि इट शुड बी यू, इट शुड बी नोबडी एल्स टू डिसाइड व्हाट यू नीड अंटिल अनलेस इट्स योर पेरेंट्स। जब आप छोटे हो, आप बड़े भी हो, तब भी पेरेंट्स का चलता है, बट when it comes to your life, your practical life, your goals, your achievements, your targets, it should be nobody, it should be only you, because you only know what you can do, even though sometimes तो हमें भी नहीं पता होता कि हम क्या कर सकते हैं, but still it's inner you
who know कि what you can do. It should be nobody. So when you're done with setting a goal, stay connected to it. मतलब हमने एक डायरी में लिख दिया, most of the people just write in a diary कि विश लिस्ट है या फिर लाइफ में ये सब चीजें करनी है, वो डायरी बन करके रख दी. Stay connected to your goal because your goal is your success. Until unless आपने decide ही नहीं किया what your goal is, how can you be so successful? When you will decide something what you're gonna do, then you will reach over there. Reach over there is not so easy. You have to do so many things. You have to face so many hurdles. You have to do so many efforts. Then you can reach somewhere. Your goal is your success. And for me, reaching somewhere is not the only something. Facing those hurdles, just enjoying the journey, after living that journey is also a success. Like I feel like I'm not somewhere today. मतलब मैं अभी कहीं पे पहुंची नहीं हूँ. It's my journey, but I feel like it's my success. My journey is my success as well. कहीं पहुंच जाना ही या फिर आपकी कोई डेस्टिनेशन इज नॉट द ओनली सक्सेस. योर जर्नी इज योर सक्सेस. यू आर सेटिंग अ गोल, दैट्स योर सक्सेस. You're being committed to your goal, that's your success. You're doing efforts for your goal. You're just achieving something. आप कोई एफर्ट कर रहे हो, वो एफर्ट आपकी कामयाब हो रही है, that's your success. Even though वो कामयाब नहीं हुई है, still you're doing effort, so that's your success. Never feel yourself a failure. Even though जो failures होते हैं उनको ज्यादा पता होता है कि what a failure is. I myself is a failure. I myself is a failure. As I told you, I failed math. I myself is a failure. तो जो फेलियर होते हैं उसको इस चीज का ज्यादा पता होता है कि व्हाट कैन अ फेलियर फील्स लाइक. तो जब वो कुछ अचीव करते हैं या जब वो कुछ एफर्ट्स कर रहे होते हैं तो वो उसके लिए ज्यादा सक्सेसफुल फील होता है. मैं ऐसा नहीं कह रही कि जो फेलियर नहीं है उसको कुछ सक्सेस फील नहीं होगा या उसके लिए वो सक्सेस नहीं है. बेसिकली my point is कि reaching somewhere या फिर a destination is not only your success. ये मैंने खुद ही लिखा है. I don't know it sounds practical for you या फिर आपके लिए logical sound करते या नहीं करता, but for me it's logical for me because this is my point कि आपका जो goal है वही आपका success. So the last slide I am having is be committed once you're done with setting your goal. मैं इसमें ये नहीं कहूंगी कि you're done with your goal या फिर ये उसके बाद खत्म. No, मैंने यहाँ कोई ऐसी स्लाइड भी ऐड नहीं करी कि यू आर डन विद योर गोल नाउ यू समथिंग. नो मैन, you have to be something more and more and more. There's no limit for you. This world is so so big. There are more and many things. मतलब first of all, so you should be committed to your goal. Like there are you're having hurdles in your goal या फिर कोई ब्रेक आ रहा है तो let it be. अगर ब्रेक आ रहा है तो it doesn't mean कि ये end हो गया. It would continue. I also had so many breaks in my journey या फिर in my this whatever I'm doing. It's not ended. So I would not say कि in my career अभी career बना नहीं है, अभी career बन रहा है. अभी बहुत starting पर है and I'm sitting over here. तो I need to be committed to my goals. First of all I'm committed to me myself. It's not my goal only. I need to be committed to me कि मैंने अपने लिए कुछ करना है या अपने लिए कुछ नहीं भी करना तो मैंने अपने आप को बताना है कि what I am, what I can do. और मैं अपने आप को ये बताती जा रही हूँ कि I'm not made for only this. I'm made for more and more and more. And it's not only me, it's an average student sitting in front of you. So if I can do it, so everybody can do it, even though so many people are doing it. So the best thing and the main thing to reach your goal, सेट गोल, बट उसके अलावा आपने अपने गोल से कमिटेड रहना भी उससे ज्यादा जरूरी है. क्योंकि अगर आप एक गोल को सेट कर लेते हो और उसके लिए कुछ भी नहीं करते तो देयर इज नो पॉइंट. यू हैव टू बी कमिटेड टू योर गोल एंड वंस यू रीच योर गोल तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स डन एंड डस्टेड. यू नीड टू डू मोर एंड मोर एंड as much as you will do something for you, it's for nobody else. आप अपने लिए कर रहे हो जो भी कर रहे हो. You will get to know कि what you are. इस सेशन का मतलब सिर्फ यही था to make people know their worth. So many of the students जो कि इंटर या फर्स्ट ईयर में आके अपने कुछ फेल कर देते हैं, बल्कि my point is फर्स्ट ईयर इंटर में तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि what they are. वो बस being friends, एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जहाँ बहुत सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं उसी ग्रुप में चले गए. लाइक बहुत सारे फ्रेंड्स मेडिकल में जा रहे हैं तो वी आल्सो गोइंग इन मेडिकल. इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो वो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं.
वहाँ तो पता ही नहीं होता, वहाँ बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल लाइफ नहीं होती है, वहाँ बिल्कुल एक कॉलेज लाइफ चल रही होती है और बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि वहीं पे बस डिसाइड हो गया कि नाउ व्हाट वी आर गोना डू। जब हम एक प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट, व्हेन वी आर डन विद इंटर या फिर व्हेन वी आर डन विद आवर एग्जाम या फिर रिजल्ट, तब हमें पता चलता है कि नाउ वी नीड टू डू समथिंग। मैं ये भी नहीं कह रही कि दैट्स द एंड पॉइंट टू डिसाइड समथिंग, टू सेट अ गोल। देयर इज नेवर टू लेट टू सेट अ गोल। अब वहां पे जो एक्चुअली में डिसाइड करता है बंदा कि व्हाट ही और शी नीड्स टू डू। बट इन केस आप वहां अपना गोल जो आपने सेट किया फेल कर देते, तो इट डजंट मीन कि इट्स एंड। यू कैन सेट मोर, यू कैन डू मोर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। इट्स नेवर टू लेट। क्या आप रीस्टार्ट नहीं कर सकते? कोई गेम नहीं है जहां पे सिर्फ 3 लाइफ मिली है और 3 लाइफ के बाद खत्म हो गया। इट्स योर लाइफ, इट्स इन योर हैंड्स, यू आर द राइटर, यू आर द डायरेक्टर। एंड इट्स नॉट अ मूवी जो कि आप मूवी से अपने आप को कंपेयर करो या किसी गेम से कंपेयर करो। इट्स यू, योर लाइफ। अल्लाह इज द डायरेक्टर, अल्लाह इज द वन। बट इट्स थिंग, आई डोंट नो इट्स अ कॉल और व्हाट, बट अल्लाह ताला भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। और ये चीज मेरे ध्यान में हमेशा रहती है, whenever I'm doing something, whenever I'm going somewhere, it's me who just ask Allah Ta'ala, I'm doing this, just help me. And I'm so amazed कि वो चीज हो जाती है because I want to do it. और जब आप खुद से कुछ करना चाहते हो तो it's अल्लाह पाक जो आपकी जरूर हेल्प करते हैं। So it was my session about to let people know that you can do a lot and you're not worthless. It's never too late to set a goal, and after setting goal, you need to be committed to your goal. This was my point. And for sure, the topic I choose is not limited. मेरा topic भी limited नहीं है, ये भी जितना ज़्यादा इसको explore किए हैं, जितना ज़्यादा इसके बारे में बात करें, उतना ही बड़ा है, इतना ही like vast है. So this was from my side. So if somebody wants to ask, please. Thank you. Thank you very much for this very informative session, ma'am. This will help us a lot in our future as well. Thank you. So all of the participants are requested. If anyone have any question, they can raise their hand and ask a question. But we have only 4 minutes left. So ask your question, and if No, I don't think so. If nobody have any question, I have some questions in the chat box. मैं इनका answer कर देती हूँ. I guess it's enough. okay, ma'am. So Fatma Me is asking for any kind of job, and even for volunteer service, we are required to have some experience. You told us that you got the job when you were in university. So what type of job it was? Basically, Fatma is an example sitting in front of you who started from the very start, from nowhere. I got a job in a firm, a tax consultancy, where I used to just filing. बेसिकली हम लोग बहुत स्टार्टिंग में ऐसे चाह रहे थे कि हमें प्लेट में रख के कुछ मिल जाए या हमें बिल्कुल हमारे मतलब की चीज मिल जाए, ऐसा कहीं भी नहीं होता। आई वॉज स्टूडिंग एसीसी एंड आई गॉट अ जॉब कि मुझे जो है वो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने एंड आई गेट इट। मैंने वो लिया। आई हैड एन ऑप्शन, इफ आई वांट सो आई कैन रिजेक्ट इट, बट आई जस्ट चूज इट कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो आई नीड टू डू इट। सो माई पॉइंट इज कि हमें बिल्कुल प्लेट में रख के हमारे मतलब की कोई जॉब या फिर कुछ नहीं मिलता, हमें स्टार्ट बिल्कुल बेसिक से ही करना पड़ता है। एंड दिस इज माई आई हैव क्वेश्चन कि लाजमी है कि बंदे के पास एक गोल होना चाहिए या वो कुछ भी कर रहा है? until or unless you don't know कि आपने कहाँ जाना है, how can you sit in a bus? फिर तो वो बंजारा वाला जो मूवीज में चलता है, that's it. मतलब हम You कुछ need to you कर रहे हैं लेकिन नॉट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, गोल बस कर रहे हैं। yes. इसका कोई पॉइंट नहीं है। You don't know where you're going. मैं ये नहीं कह रही कि आप जो कर रहे हो वो वर्थलेस है या उसका कोई मकसद नहीं है, बट अगर आपने कहीं पहुंचना है, वांट टू बी समथिंग, यू नीड टू रीच समवेयर, तो आप वो काम करते हुए डिसाइड कर सकते हो कि आपने कहाँ पहुंचना है या आपने क्या करना है। इफ अ राइटर इज राइटिंग समथिंग, ही डोंट नो कि व्हाट ही वांट्स टू डू, बट वो उस राइटिंग को कंसिडर करते हुए वो डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने एक बुक लिखनी है। जहां उसने डिसाइड किया कि उसने बुक लिख लेनी है, वहां उसका गोल सेट हो गया। इफ अ पेंटर इज जस्ट डूइंग पेंटिंग ऑन अ जो भी वो पेपर होता है, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, वो बस एक कलर्स को स्प्लिट कर रहा है। जब वो डिसाइड करे कि उसने क्या पेंटिंग करनी है, वहां उसका गोल डिसाइड हो गया ना। Thank you so Okay, much ma'am. for Thank you. everybody who is saying how to choose a perfect goal. There is no perfect goal. It's you.
You need to know कि what you are. मतलब I don't say कि medical is a perfect goal, engineering is a perfect goal, writing is a perfect goal. It's you who need to decide कि what's perfect for you, and nothing is perfect in this world. We can't justify a goal by saying कि perfect goal है. A goal should be कि आप the thing I said कि smart goal. You should know कि आप अब मैं कह दूं medical is a perfect goal. अब you're not made for it. So what can you do? I think writing a book is not a goal. Becoming a writer is a goal. No, writing a book is the goal. Like he just wrote a book. He is a writer now. What do you think? So being something is just a goal. Doing something is a goal. Being something is not just a goal. Doing something is a goal. So many. The question is, how can you set long-term and short-term goals? What strategies have been applied by you, Maeve? So the point is कि so many of the short-term goals जो हैं वो मिलके एक long-term goal बना रहे हैं. But the most important thing is कि आपको कोई short-term goal जो है वो आपके long-term goal को affect ना करे. जो आपका एक long-term goal होता है कि आपने long term में अपनी life में कहाँ पहुंचना है, वो relate करता हो आपके इन short-term goal से. Like इसका example होगा if you want to reach somewhere, so उसके लिए आपको efforts करनी होंगी to being to being successful in effort वो आपका एक short term goal है. आपने उस goal को achieve किया. Now that's a short term goal and you're doing it for your long term goal. So all your short term goals, all nahi, but most of your short term goals are related to your long term goals. Never compromise on your long term goals just to achieve a short term goal. ये तो हमने इसी से भी पढ़ा है. The smart goal and the directors should not compromise on long term goal for short term. I guess everybody is done. I think this is it for today. With that, I'll bid you all a farewell. Thank you again for joining us, and I hope to see you in our future sessions as well. Take care and have a wonderful day. Thank you so much all of you for having me here. I thought कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा या I don't know what informative रहा होगा, and I hope so कि आप लोगों ने कुछ सीखा हो. Thank you Yes, so ma'am, much it was for very having me here. informative. Thank you. Thank you. Love. Allah Hafiz. I wish you all best of luck for your life. Love. Thank you, ma'am.